پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، الفاظ کے درست چناؤ کا مشورہ دے دیا، کہا سیاستدانوں کو موجودہ حالات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہماری افواج سرحدوں کی محافظ ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستانی فوج نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے، قیام امن میں پاکستان کے کردار کو دنیا سراہتی ہے۔ اسرائیل اور بھارت سمیت عالمی قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، دشمن کو ہمارے اندرونی حالات سے فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے، ہمیں عالمی سازشوں کو سمجھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ درست انداز میں کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان معافی مانگے، وفاقی وزیروں کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے لواحقین اور قوم کے جذبات مجروح ہوئے، شہداء ہمارے سر کا تاج ہے، مولانا بیان پر قوم اور شہداء کے خاندانوں سے معافی مانگے۔ وفاقی وزیر رضا حیات ہراش نے کہا مولانا فضل الرحمان نے شہداء کی بے حرمتی کی، فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا بھی مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ، کہا مولانا فضل الرحمان کا شہداء سے متعلق بیان افسوسناک ہے، ان کی باتیں سیاسی، اخلاقی یا اصولی طور پر درست نہیں۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے افواج پاکستان اور عوام نے ملک کے لیے شہادتیں دی، مولانا فضل الرحمان کے بیان سے سب کی دل آزاری ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی مطالبہ کیا مولانا پوری قوم اور شہداء کے لواحقین سے فوری معافی مانگی۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر اور فخر ہیں، ہم شہداء کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، سب کو اپنی گفتگو میں شائستگی اختیار کرنی چاہیے اور ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کہتے ہیں ہم سب کو مل کر اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہمارے جوان سرحد پر تنخواہ کے لیے نہیں شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شہداء کی توہین کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے، میں شہداء کے اہل خانہ اور بچوں سے معافی مانگتا ہوں۔ حافظ طاہر اشرفی شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے متنازع بیان پر پٹیشن، گجرانوالہ کی عدالت نے سربراہ جے یو آئی کو 28 جولائی کو طلب کر لیا۔ لاہور سیشن کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست، عدالت نے ڈائریکٹر این سی سی آئی اے سے جواب طلب کر لیا، سماعت 17 اگست تک ملتوی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، کون کشمیری ہے کون نہیں یہ فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر میں بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا، اب وفاقی حکومت کو ہی یہ بحران ختم کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر میں ٹکٹ ہولڈرز اور رہنماؤں سے خطاب، کہا احتجاج کی آڑ میں کسی کو تشدد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی، پرتشدد مظاہرے، جلاؤ گھراؤ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی، بات چیت کے لیے کل بھی تیار تھے آج بھی تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھرپور انتخابی مہم چلائے گی۔ احتجاج کی ناکامی کے بعد کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ راولہ کوٹ میں اسلام آباد پولیس کے ملازم احتشام مسیح پر تشدد، گمراہ کن ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلا دی۔ آزاد کشمیر پولیس کا کہنا ہے تشدد اور ویڈیو بنانے والوں کی شناخت کا عمل اور تحقیقات جاری ہیں، کسی بھی شخص یا گروہ کو اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہیکرز نے بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کوڈن کالم کا ڈیٹا چرا لیا، 19,000 فائلز چوری کی گئیں۔ راجرز کے مطابق رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس نے بھارتی نیوکلیئر پاور پلانٹ کی ہزاروں فائلز ڈارک ویب پر اپلوڈ کر دی۔ فائلیں پلانٹ کے ٹھیکیدار انل امبانی کے ریلائنس گروپ کی ہیں۔ ڈارک ویب پر اپلوڈ فائلز میں انجینئرنگ نقشے اور انشورنس دستاویزات شامل ہیں۔
पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितना खवारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वफाकी वजीर दाखिला का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अमरीका की ईरानी फौजी तनसीबात और साहली इलाकों में बमबारी। अमरीकी सेंटकॉम ने बयान में बताया, 90 मिनट तक जारी ऑपरेशन में तुम बुजुर्ग जजीरे पर दिफाई निजाम, क्रूज मिसाइल के मराकज और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया। हमलों का मकसद ईरान की आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजों पर हमलों की सलाहियत को कमजोर करना है। अमरीकी हमलों में 7 फौजी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। ईरानी फौज का कहना है अमरीका ने सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके बामपुर में छावनी पर हमला किया। एक बैरिक को 13 मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरान का उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डिपो तबाह कर दिए। कुवैत के अली सलाम एयरबेस पर ड्रोन्स के लॉन्चिंग रैंप को निशाना बनाया। उर्दन में अल अर्ज़क फजाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए। ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक वस्ता में अमरीकी बहरिया के 20 से जायद जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात हैं। अमरीकी अफवाज चौकस और मुहलिक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज को फिर बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है आबनाए हुर्मुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक दुश्मन अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता। पासदारान इनकलाब का अमरीकी इत्तेहादियों के तवानाई तरसील को निशाना बनाने का इंतबाह। कहा, तनाज़ा जारी रहा तो तेल और गैस के बरामदी रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं। खित्ते से तवानाई की बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान ने मुआहिदा न किया तो अगले हफ्ते उसके बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहिदा करने पर जोर दिया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान कहते हैं ट्रंप के बयानात का जवाब अल्फाज नहीं अमल से देंगे। अपनी सरजमीन के एक एक इंच का हर कीमत पर दिफा करेंगे। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक क्रिप्टो वॉलेट्स में मौजूद $130 मिलियन मुंजमद कर दिए। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियों के तहत $130 मिलियन से ज्यादा मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद किए। ईरान की गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरानी हुकूमत को गैर कानूनी आमदनी तक रसाई से रोकने के लिए पुरअज़्म है। कारोबारी बिरादरी ज्यादा पैदावार और बरामदात के फरोग के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR के सीनियर अफसरान हर माह कराची का दौरा करें और कारोबारी बिरादरी से राब्ता करके उनके मसाइल बिला ताखीर हल करें। टैक्स निजाम को मजीद शफाफ आसान बनाना है ताकि कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पेचीदा इंसानी बहरानों से निमटने के लिए इदारा बराए राब्ता इंसानी अमूर की खिदमत को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था बढ़ते हुए मौसमियाती खतरात से मौसर अंदाज में निमटने के लिए ताउन को मजीद मजबूत बनाना होगा। टॉम फ्लेचर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और वजारत दाखिला से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म से चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने भी मुलाकात की। मानसून बारिशों में किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमतों और पीडीएमएस के साथ रवाबित मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ने पर आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 0.91% बढ़कर $85.49 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 0.68% इजाफे से $79.88 फी बैरल पर पहुंच गई। डॉक्टर आकाश कुमार कत्ल केस में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सुरेश, रामचंद और अनिल आदि जराइम पेशा हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया। डीआईजी साउथ असद रजा की मीडिया ब्रीफिंग, बताया डॉक्टर आकाश को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। मुल्जिमान तक सीसीटीवी की मदद से पहुंचे। कोई भी पाकिस्तानी तनसीखशुदा या जायदुल मयाद नाइकॉप पर पाकिस्तान नहीं आ सकता। दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई गाइडलाइन जारी। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन हुकाम को आगाह कर दिया। गैर मुल्की पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी वीजा या कारामद नाइकॉप को लाजमी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओकाड़ा ई ग्रीन बस का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। कहा, ई ग्रीन बस आवाम के लिए तकरीबन मुफ्त और एक लग्जरी सवारी है। सूबे में ई ग्रीन बसेस का ये मंसूबा मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए का है। आवाम को अब तक 80 अरब रुपए की बसेस दी जा चुकी हैं। मरियम नवाज ने पिंक सॉलिड वेस्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का भी इजरा कर दिया। कहा, फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉलिड पर अब मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत है, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। हमारे नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। फनियों, पेशेवराना तालीम और पैदावारी सलाहियत माशी कामयाबी की जमानत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर पैगाम। कहा, नौजवानों को पाकिस्तान और दुनिया भर में एतमाद के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रहे हैं। बगैर किसी तफरीक के तमाम मर्दो खवातीन को यकसा मौके की फराहमी हुकूमती तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए। नौजवानों को 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज दे रहे हैं। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दरे निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरियार मुनव्वर, दुर्र फिशा सलीम, सहर हाशमी, नामिर खान, सानिया सईद और सबा हमीद ड्रामे के नुमाया किरदार। ड्रामा दरे निजात को मेरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान है, तो देखना ना भूलिए। ड्रामा दरे निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।